Hi, welcome back to the A to Z series of RBI Grade B. In today's video, we are going to discuss life of RBI Grade B officer. Till now, we have made different videos on different alphabets. If you want to watch the entire set of videos, I would request you to watch this playlist. इस प्लेलिस्ट का लिंक इस डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है. आप सारे वीडियोस वहां से एक्सेस कर सकते हैं. Now coming back to the topic life at RBI. You would have watched a lot of videos on life at RBI where your mentors would have talked about different aspects, salary, training, joining, etc. etc. But in today's video, I would be talking about life at RBI in terms of life cycle. That how does it starts? Once you get an offer letter, after that your medical will happen, your joining will happen, your training will happen, and how it goes through, how it progresses till the time you retire. So I would be talking about different aspects about life at RBI. So let me first start with medical. So once you get your offer letter, you get selected, you get your offer letter, it's a day of happiness in your life because you are getting a joining letter, offer letter from Reserve Bank of India. लेकिन ज्वाइनिंग से पहले होता है मेडिकल टेस्ट. मेडिकल टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट करवाए जाते हैं, जैसे कि एक फिजिकल बेसिक एग्जामिनेशन होगा, सीबीसी अबाउट योर नाउ blood cells. Then this is about, I think, diabetes and sugar, FBS. This is about your kidneys. Then there is a urine test, x-ray of your chest, ECG of your heart, and there is an eye testing. So बहुत सारे टेस्ट होते हैं just to find out that whether you are fit for the job. In case you are unfit, there might be further repercussions. मेडिकल होने के बाद आपको 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है. ए इज मेडिकली फिट. कईयों को मेडिकल प्रोबेशन में भी डाला जाता है, विच इज कैटेगरी बी. मेडिकल प्रोबेशन मीन्स दैट दे आर गिविंग यू टाइम टू सेट थिंग्स राइट. ये बहुत सीरियस इशू नहीं है. बहुत सारे लोग जो ओवरवेट होते हैं, आईसाइट में इशू है या कुछ माइनर प्रॉब्लम है, दे विल पुट यू अंडर मेडिकल प्रोबेशन एंड दे विल अगेन टेस्ट यू आफ्टर 6 months, but normally you are removed out of the medical probation after 6 months. हाँ, कुछ बहुत ही बड़ी ब्लॉकेड है, कोई बड़ा सिनारियो है which is making you incapable of performing your job, or which is a serious health issue, then you might be declared unfit. That has happened with very few, I would say, a rare scenario in the past. सो आई एम नॉट एबल टू एग्जैक्टली कमेंट के इस केस में क्या होता है, उसको आप कैसे फाइट कर सकते हो. बट ए एंड बी आर प्रिटी सॉर्टेड आउट. मोस्टली यही होता है एंड देर इज नथिंग टू वरी अबाउट इवन इन बी. सो दैट इज अबाउट योर मेडिकल. नाउ नेक्स्ट इज ज्वाइनिंग. ठीक है, तो अभी जो आपकी ज्वाइनिंग होती है वो डायरेक्टली इट हैपन्स ऑन द लोकेशन where you are meant to take your job permanently. So पहले क्या होता था, first they will call you the training center and from there they will give you your joining departments and your locations. But right now your joining will happen at the at a definite location in a definitive department. तो वो पहले से ही decided होता है. joining के बाद training होती है. ठीक है, तो joining for 50% of the batch it happens mostly in Mumbai because it's a big center and I think it's a good place to start your career with. And few days after joining, once you are allocated to your locations, once you're allocated now to your departments, then your training process starts. तो ये थोड़ा उल्टा हो रहा है. कोविड से पहले ट्रेनिंग होती थी, फिर ज्वाइनिंग होती थी, मतलब इन योर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, इन योर रिस्पेक्टिव लोकेशन. अब ज्वाइनिंग आपकी पहले हो रही है, ट्रेनिंग बाद में हो रही है. तो आप अलग अलग जगह जाएंगे अपनी ज्वाइनिंग के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग लोकेशंस में, एंड देन योर ट्रेनिंग विल स्टार्ट. ठीक है, तो ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? ट्रेनिंग आपकी एक जगह होती है. इट स्टार्ट्स विद MET daily. So that's an induction training for few days. I think that's 20-25 days or 30 days where your induction training would happen. तो सारे लोग सब जगह से MET daily में आएंगे. It is a very good infrastructure and that is where your training would be held. इस induction training में they will basically teach you about the functions of RBI, various departments and RBI. People from within RBI and outside RBI will take your lectures. So this is a pretty fun period, I would say. I've seen people while doing their training at daily during weekends going to Manali, Rishikesh and all that and just enjoying their training. So that's a very good period, I would say. And then after that, if you are allocated, I mean, before your training itself, you have been allocated your department. So if you are from departments like DOS, Department of Supervision, then Department of Regulation, Financial Regulation Department or Enforcement Department,
Then your further training, after this induction training, your further training would happen in College of Supervisor or Supervisory, I don't remember the exact full form, COS Mumbai for 3 months. So all these deadly functions, I would say, where you require the maximum knowledge, would have training in COS Mumbai for 3 months. For all other departments, there would be training at RSBC, Reserve Bank Staff College, Chennai, very famous for its ट्रेनिंग बैचेस. यहाँ पे भी लोग बहुत मज़ा करते हैं, बीचेस पे जाते हैं. बट ये सबसे फन पीरियड है. इसके बाद फिर काम स्टार्ट हो जाता है, सब लोग बिखर जाते हैं, एंड देन यू माइट नॉट ऑल मीट अगेन एट वन प्लेस. सो दिस इज अबाउट द ट्रेनिंग पार्ट. तो इसको आप बहुत इंजॉय करें. अगर आप आरबीआई में जाए, मैं यही बोलूँगा, इस वक्त काम की टेंशन मत लें. सो ट्रेनिंग के बाद आपकी पोस्टिंग मतलब होती है. वैसे तो वो ज्वाइनिंग के टाइम ही पोस्टिंग हो चुकी होती है, डिपार्टमेंट्स मिल चुके होते हैं. बट चलो एक फॉर्मल ट्रेनिंग हो गई. नाउ यू गो बैक टू योर ज्वाइनिंग प्लेसेस, योर पोस्टिंग्स, एंड यू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्क. तो जैसा मैंने बोला, इनिशियल पोस्टिंग आपकी 50% लोगों की मुंबई में ही होगी. होम पोस्टिंग होती है नहीं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो इनिशियल पोस्टिंग, एज आई टोल्ड यू, फॉर 50% ऑफ द पीपल वुड बी इन मुंबई. अगेन दैट इज रैंडम, देर इज नो क्राइटेरिया कि भैया अगर आपका मार्क्स अच्छा है तभी आपको मुंबई दिया जाएगा, या मार्क्स बुरा है तभी मुंबई दिया जाएगा. इट्स ऑल रैंडम. इट्स नॉट बेस्ड ऑन प्रोफाइल, इट्स नॉट बेस्ड ऑन योर मार्क्स, इट्स नॉट बेस्ड ऑन योर रैंक. और जिन लोगों को फर्स्ट पोस्टिंग मुंबई नहीं मिलती है, रीजनल हेड ऑफिस मिलता है, लखनऊ, चेन्नई, चंडीगढ़, जयपुर, ऑल दैट, मोस्ट प्रॉब्ली उनकी सेकंड पोस्टिंग मुंबई में होगी. मुंबई इज द प्लेस वेयर एवरीबॉडी हैज टू स्पेंड सर्टन टाइम, बिकॉज वहीं से असली लर्निंग आपको पता लगी कि आरबीआई करता क्या है. इनिशियली होम पोस्टिंग के 0 चांसेस हैं, ठीक है. डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस के शुरू में ही होम पोस्टिंग मिल जाएगी. और काफ़ी लोग ये पूछते हैं, सर वेदर वर्किंग इन मुंबई इज गुड और वेदर वर्किंग इन रीजनल ऑफिस इज गुड. सो बोथ हैव देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स. अगर आप हेड ऑफिस मतलब मुंबई में जाते हैं, अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ पे आप ज़्यादा समय के लिए रुक सकते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली 7 to 10 years और इवन मोर इफ़ यू आर डूइंग सम गुड वर्क एंड इफ़ यू हैव रेपो विद योर बॉस. And here you would do some quality work. ऐसा नहीं है that no quality work is being done in RO, but Mumbai is the place from where the things are driven, new initiatives are driven. So you would have a chance to become of something which is emerging, and you would meet some quality people. You would get opportunities to do some quality networking. अच्छा काम करोगे, अच्छे लोगों से मिलोगे. Obviously that would lead to maybe some good opportunities for deputations later in your career. जब आप कोई फॉरेन डेपुटेशन पे जाना चाहते हो, आईएमएफ में जाना चाहते हो, वर्ल्ड बैंक में जाना चाहते हो, या कोई इंस्पेक्शन पे जाना चाहते हो फॉरेन बैंक में, फॉरेन ब्रांच में, यू वुड गेट सम गुड अपॉर्चुनिटीज. अबाउट द रीजनल ऑफिसेस, यहाँ पे उतने इमर्जिंग चीज़ों पे काम नहीं करने को मिलेगा, बट यू वुड बी काइंड ऑफ लीडिंग अ टीम ऑफ 10 to 12 पीपल. सो यू वुड होन योर लीडरशिप स्किल्स. ये लीडरशिप स्किल्स आपको बहुत सीखने को मिलेंगी. टीम को कैसे मैनेज करना है बहुत सीखने को मिलेगा. एंड यू वुड नॉट बी crunched in one type of work that will happen in head office. You will have exposure to different type of work. बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के साथ काम करना होगा, बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा. Therefore you will get good idea about how the various department works. और ऑफिस में नहीं, फिर आप उनके साथ लंच में भी बात करोगे. अगर आप आरबीआई के अकोमोडेशन ले रहे हो, शाम को भी ड्यूरिंग वॉक और सम टाइम यू विल मीट पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. सो आरओ में बहुत ईजी लाइफ रहती है, एंड यू गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. और खुद को भी टाइम दे पाओगे. इट वुड बी टाइम दैट यू कैन अपस्किल योर सेल्फ एंड बी रेडी फॉर द बिगर अपॉर्चुनिटी व्हेन इट कम्स योर वे. तो ये तो एचओ और आरओ का हो गया. नाउ कमिंग बैक टू दी पोस्टिंग, मैंने बताया कि होम पोस्टिंग इनिशियली नहीं मिलती है, बट व्हाट इज द रियलिटी ऑफ होम पोस्टिंग, क्या कभी मिलेगी? आरबीआई में जनरली देर इज अ अनसेड रूल, इट्स नॉट एन ऑफिशियल. द अनसेड रूल इज दैट दे गिव यू होम पोस्टिंग ओनली वंस इन योर एंटायर करियर. तो अगर आप 30 साल आरबीआई में लगा रहे हैं, 30 साल में से एक बार यू विल गेट एन होम पोस्टिंग, से फॉर अराउंड 5 to 7 years. दैट्स इट. ये अनसेड रूल है, ऑफिशियल नहीं है, बट usually they oblige. So whenever they do your transfer, they will ask you what are your options. If you give home posting as your first preference option, not initially but during your first transfer after your initial joining, they might oblige or they might oblige later, but एक बार वो आपको जरूर देंगे अगर आप मांगोगे. ठीक है. क्या 2 बार भी मिल सकती है? पॉसिबल है, बट इट्स वेरी रेयर. इट्स ओनली पॉसिबल इफ यू सर्व इन सम सेंसिटिव एरिया. तो मेरे एक स्टूडेंट थे,
वो नॉर्थ ईस्ट में एक सेंसिटिव एरिया में सर्व करके आए थे होम पोस्टिंग के बाद. आफ्टर दैट सेंसिटिव पोस्टिंग ही आस्क्ड फॉर अ होम पोस्टिंग अगेन एंड ही वाज गिवन. सो इट्स लाइक गिव एंड टेक. अगेन इट्स नॉट फॉर्मल, इट्स ऑल इनफॉर्मल. ठीक है, कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है, बट दिस काइंड ऑफ थिंग्स डू हैपन. सो टोटल होम पोस्टिंग अगर हम बात करें, आपको अगर 2 मिल गई 7-7 साल की, so the maximum time you would be able to spend in your home state would be 14 years, but that's a lot of time. अगर मैं out of 30 years I am able to spend 14 years in my home state, that is really good, but that is very rare. मैं बोलूँगा आप इतना ही लेके चलो, ये भी 7 का शायद 5 भी हो सकता है. ठीक है. So that is about postings. Now about car, housing, marriage. सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि those people who clear within the age group of 25, 26, 27, मैं उनकी ज्वाइनिंग के बाद, पोस्टिंग के बाद, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन विच इज़ अ वेरी कॉमन थिंग हैपनिंग इज दैट दे आर गेटिंग मैरिड विद इन 6 मंथ्स. तो मैरिज होने की बहुत संभावना रहती है क्योंकि आपकी एक अच्छी जॉब लग गई है और बहुत सारे लोग आपके पीछे रहेंगे, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों. कार की बात आती है. नाउ दैट्स अ काइंड ऑफ प्रेस्टीज इन आवर सोसाइटी दैट इफ यू आर इन अ गुड जॉब यू मस्ट ओन अ कार. बट लोगों का और ही पर्सपेक्टिव है कि क्या मुझे ऑफिशियल कार मिलेगी, वो भी लाल बत्ती वाली? बिल्कुल नहीं मिलती है. लाल बत्ती वाली गाड़ी इज नॉट गिवन टू एनीबॉडी इन आरबीआई, एनीबॉडी. बट हाँ, आरबीआई कार जरूर देती है इफ यू, आई थिंक, spend 5 years at the GM level, or if you become CGM, then you get an official car from RBI, but that is not लाल बत्ती वाली. ठीक है. उससे नीचे तो जीएम सीजीएम बनने में तो बहुत साल लग जाएंगे. उससे पहले कि आपके पास गाड़ी नहीं होगी बिकॉज आरबीआई पेज यू वेल. इट ऑल्सो गिव्स यू रिबेट ऑन इंटरेस्ट इफ यू वांट टू टेक कार लोन, और पेट्रोल अलाउंस तो आरबीआई देती है गाड़ी चलाने के लिए. सो आई थिंक मोस्ट ऑफ दी पीपल आई हैव सीन कि वो गाड़ी तो ले ही लेते हैं यार, ऐसी कोई फाइट नहीं है. एंड दे बाय गुड कार्स, 13, 14, 15 लाख की. आई थिंक दैट्स अनफ. अब ज़्यादा आपके ड्रीम्स हैं देन आरबीआई इज नॉट द प्लेस फॉर यू. इट्स नॉट अ मनी मिंटिंग मशीन. इट विल गिव यू वेरी स्लो ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ मनी एज कम्पेयर टू द प्राइवेट सेक्टर, बट एक डिसेंट ग्रोथ रहेगी. हाउसिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो आरबीआई हैज़ इट्स ओन एकोमोडेशन. ठीक है. मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप मुंबई में हैं, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट आरबीआई अकोमोडेशन बिकॉज दे हैव अ वेरी लिमिटेड अकोमोडेशन देयर, तो वो खाली ही नहीं होती है. तो मुंबई वालों को जनरली सेल्फ लीज पे लेनी पड़ती है. सो आरबीआई प्रोवाइड्स यू एचआरए ऑफ अराउंड 75K और मे बी मोर. आई एम नॉट वेल वर्स विद द रीसेंट फिगर्स. यूजिंग दिस अमाउंट यू कैन टेक सम फ्लैट और सम, आई डोंट नो, वॉट एवर फैसिलिटीज आर अवेलेबल देयर. मतलब प्राइवेटली आपको खुद लेना पड़ेगा एंड आरबीआई विल ट्रांसफर द अमाउंट टू द लैंडलॉर्ड इटसेल्फ. तो सेल्फ लीज कर सकते हो, या फिर आरबीआई का अकोमोडेशन ले सकते हो इफ अवेलेबल. मोस्ट ऑफ द पीपल इन मुंबई टू whom to I talk to, they are arranging self lease only because accommodation is not available. इन आरओज, अगर हम आरओज की बात करें, जनरली यहाँ पे अकोमोडेशन मिल जाती है बिकॉज दे हैव अ वेरी लिमिटेड स्ट्रेंथ एंड आरबीआई हैज गुड नंबर ऑफ हाउसेस. सो यहाँ पे लोग जनरली आरबीआई अकोमोडेशन में ही रहते हैं. So that was about car, housing and marriage. Then transfers, I have already talked in brief about the transfer. So आप अब एक जगह पे सेट हो गए हैं, पोस्टिंग हो गई है, गाड़ी वाड़ी ले ली है, accommodation का भी हो गया है. Then after 5 to 7 years, the time would come that you might hate or you might enjoy. For some people it might be very difficult कि यार अब 5-6 साल के बाद दोबारा से सारा बोरिया बिस्तरा उठाओ, बच्चों का स्कूल चेंज करो, जाके नए दोस्त बनाओ, नई जगह जाओ. इट माइट बी चैलेंजिंग बट दैट टाइम विल कम. ठीक है. तो ट्रांसफर्स आर नेचुरल प्रोसेस, बट ट्रस्ट मी, बाहर से बहुत मुश्किल लगता है मुझे तो कि कैसे आप 5-5 साल के बाद ट्रांसफ़र लेते रहते हो. बट पीपल टेल मी दैट इज़ द बेस्ट पार्ट बिकॉज यू गेट टू वर्क in different parts of the country, you understand different cultures, and that is what exploring life is. तो वो personal choice है, मुझे तो नहीं अच्छी लगती है frankly. तो आरओ में जनरली आपका ट्रांसफर एवरी 5 years हो जाता है. But there is one time exception, say if you are having some health problems, or if your children are 11th or 12th and you want them to complete their 12th and get into some college, they might give you one time exception if you request that. तो वो 5 से 7 साल हो जाएगी. एचओ में जनरली ट्रांसफ़र 7-10 साल होती है, कई बार उससे भी लेट होती है इफ़ यू आर इन गुड बुक्स एंड यू आर डूइंग गुड वर्क, बिकॉज मुंबई इज़ द प्लेस वेयर दे वांट पीपल, अगर वो वहाँ सेट हो गए हैं. इज़ देयर एनी ट्रांसफ़र पॉसिबल ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स? येस एंड नो, आई वुड से येस. बहुत सारे केसेस ऐसे सुने हैं कि वाइफ के हस्बैंड कहीं और थे तो उन्होंने ट्रांसफ़र मांगी, दे दी गई. किसी के घर में प्रॉब्लम थी, ट्रांसफ़र मांगी, दे दी गई.
but it's not a process which is like very easy, because otherwise everybody will come up with excuses and ask for a transfer. So there are humanitarian grounds, but at the same time there should be vacant seats there, there should be requirement there in which you can be fit into. नहीं तो सारे लोग बोलेंगे हमें घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है. So it is to be used, but it is given after a lot of I would say scrutiny. So after transfers, we will talk about growth opportunities, because once you have worked in RBI say for 5 to 10 years, what are the growth opportunities that you would be looking at? In terms of promotions, the promotions are little slow. We all know that the first promotion from RBI grade B, ठीक है, to C, it takes around 7 years minimum. ठीक है, और अगर आपका कुछ गलत रिव्यू हो गया तो इट माइट टेक यू इवन मोर. और काफ़ी लोग पूछते हैं क्या मैं डिप्टी गवर्नर लेवल तक भी पहुंच सकता हूँ. इट्स वेरी रेयर आई वुड से. ठीक है, मतलब ईडी तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है. एट दी मैक्स यू माइट बिकम सीजीएम, अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत 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 अच्छा काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर बन जाओगे. बट उसके ऊपर तो आई वुड से इट ऑल बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट एंड टैलेंट एंड हाउ मच नेटवर्किंग यू आर एबल टू बिल्ड. ईडी और डिप्टी गवर्नर बनना आसान बात नहीं है, मतलब दे आर नेशनली नोन. सो उसके लिए कुछ खास ही बंदे होते हैं जो आपके बैच में से जा पाए शायद. और क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं? सो आरबीआई ऑल्सो गिव यू अपॉर्चुनिटी टू स्टडी अब्रॉड आफ्टर वर्किंग इन आरबीआई फॉर 3 to 5 years. आई थिंक देयर वाज a scheme called Golden Jubilee Scholarship Program, in which they give scholarship worth 80 lakh if you get admission into some good university, good foreign university or maybe some good Indian university. बट ये ऐसा नहीं है कि कोई भी एडमिशन लेके आप स्कॉलरशिप मांग लेंगे. इट इज़ फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल से 3 to 5 पर ईयर. ठीक है, और इसका बॉन्ड भी होता है. इफ यू आर अवेलिंग दिस, देन आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन यू वुड हैव टू कम बैक एंड सर्व इन आरबीआई फॉर एटलीस्ट 3 years. और पहले तो एडमिशन ही नहीं मिलती लोगों को. एडमिशन मिलने के बाद भी बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसेस है, बिकॉज देयर लिमिटेड नंबर ऑफ सीट. सो डोंट थिंक कि यार ये मिल ही जाएगी, ये बहुत मुश्किल से मिलती है. Then foreign deputations would also be one area where I would say it's a growth opportunity, because you would get some allowances in foreign currencies which will increase your savings. तो आपको IMF वर्ल्ड बैंक में मौका मिल सकता है. फॉरेन बैंक्स में भी पोस्टिंग की जाती है, बेसिकली इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, अफ्रीका में, कोई और कंट्रीज में जहाँ पे उनको अभी बैंकिंग इतना इवॉल्व नहीं हुआ है जितना इंडिया में हुआ है. देन फॉरेन इंस्पेक्शंस होती हैं. अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन में हो, देर आर सर्टन ब्रांचेस ऑफ एसबीआई विच आर इन लंडन, अदर कंट्रीज, यू माइट बी सेंट टू दोज ब्रांचेस. ये काफ़ी जल्दी भी मिल जाती है करियर में ऑप्शन, इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग एंड इफ़ यू आर टैलेंटेड. देन कुछ इंटरनेशनल कमिटीज़ होती हैं, बेसल कमिटी एंड ऑल दैट. उसमें भी आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. यू माइट गेट एन अपॉर्चुनिटी इन दैट ऑल्सो, बट अगेन दैट माइट नॉट कम इनिशियली, ओनली लेटर इन योर करियर. बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आप बन सकते हैं. ठीक, कोऑपरेटिव बैंक्स में आरबीआई नॉमिनेट करती है, कमर्शियल बैंक्स में आरबीआई नॉमिनेट करती है. सो इफ यू आर इन दी गुड बुक्स, इफ यू हैव परफॉर्म वेल इन योर करियर, you might later in your career get this opportunity to be appointed as board of directors, which is again a matter of prestige. बाकी मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा सलीम गंगाधरन जी का, हु इज़ एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर. ही स्टार्टेड एज एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर. वो कोई आईएएस वगैरह नहीं है. एंड यू सी हिज ग्रोथ. आई मीन वो अभी प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर हैं, जो मैंने हायरार्की में बताया था. अभी हैं या नहीं मुझे नहीं पता, बिकॉज आई टुक दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम विकी. पर वो थे, एक टाइम पे थे. And he has been appointed as various good posts like Director Syndicate Bank, Director Central Bank of India, Chairman of South India Bank. I think that's a matter of prestige. How many of you get this opportunity to become chairman at South Indian Bank? तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह आपकी ग्रोथ हो सकती है. बट अगेन दीज एग्जाम्पल्स वुड बी रेयर. अगर आपके बैच में 200 बच्चे ज्वाइन करते हैं तो शायद 2 भी इस पोजीशन पे नहीं पहुंच पाएंगे, ये आपको समझना होगा. देन सेविंग्स. अब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि मैं कितना पैसा सेव कर पाऊंगा, क्या कॉर्पस बिल्ड कर पाऊंगा. नाउ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेल हाउ मच यू वुड बी एबल टू सेव, बिकॉज वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं. अभी मेरे एक स्टूडेंट है मुंबई में, ही इज़ नॉट वेरी लग्जरी ओरिएंटेड गाय. तो वो कहते हैं कि मैं 80,000 से 90,000 तक सेव कर लेता हूँ एंड ही इज़ लीडिंग अ गुड लाइफ. तो इस तरह से सेविंग है और आगे जाके बढ़ भी सकती है. और मैंने बहुत देखा है कि जितने भी लोग आरबीआई में सेलेक्ट होते हैं, लड़कियों के तो शादी होती है, देयर हस्बैंड आर वर्किंग. लड़के भी जो शादी करते हैं, देयर वाइफ्स आर आल्सो वर्किंग.
So most of the times when both are working, I'll tell you an example. One of my student is married to a girl who is also working, एंड दे हैव अ कंबाइंड सेविंग ऑफ 2 लाख पर मंथ. उनका एक गोल है कि सर मुझे 7 साल में इतना पैसा इकट्ठा कर लेना है कि मेरी एक सैलरी उस पैसे से आती रहे. सो हैज अ टारगेट ऑफ 3 करोड़ of savings in 7 years. So 3 crore means 7% interest, which means around 21 lakh उनको इंटरेस्ट आ जाएगा. ही इज अ टारगेट ऑफ दैट. तो वो 2 लाख रुपए महीना सेव करते हैं. ठीक है, 12% है, म्यूचुअल फंड्स में लगाया है, एवरेज रिटर्न. तो आफ्टर 7 years दे वुड हैव अ काइंड ऑफ अ कॉर्पस ऑफ 2.65 करोड़ हेयर, एंड दे वुड ऑल्सो हैव मनी इन देयर एनपीएस. वहाँ पे भी अच्छा खासा पैसा जमा हो रहा है. तो 7 साल बाद वो भी 25-30 लाख शायद हो जाएगा, पता नहीं 15 लाख होगा, जो भी है, बट दे वुड बी नियर टू वेरी वेरी नियर टू दिस 3 करोड़ फिगर. तो सेविंग्स हैं, अच्छी खासी हैं, बट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ सेविंग्स यू विल रियलाइज व्हेन यू कीप इन्वेस्टिंग दैट इन सम गुड इंस्ट्रूमेंट्स. अगर उसको ऐसे ही रखोगे, दे माइट नॉट ग्रो एट ऑल. बाकी एट्रिशन क्या है, क्या लोग छोड़ते हैं आरबीआई? वेल येस, सम पीपल आफ्टर वर्किंग फॉर 9-10 years दे वुड लीव आरबीआई फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज. कुछ लोग पहले भी छोड़ जाते हैं इफ दे गेट सम बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज एज आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और मे बी सम स्टेट सिविल सर्विसेज. बट आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल एट्रिशन, जहां लोग काफी साल काम कर चुके हैं. नाउ वो क्यों छोड़ते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट दैट. बट एट्रिशन बहुत कम है. सो दिस इज एन आरटीआई डेटा वेयर वी सॉर्ट के फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कितने लोगों ने आरबीआई छोड़ा. जस्ट 8. टोटल 2304 ऑफिसर्स थे, उसमें से सिर्फ 8 लोगों ने छोड़ा. मतलब एट्रिशन रेट इज समवेयर बिटवीन 3 to 4%, विच इज वेरी लो. If you analyze attrition rate in the private banks or in the private companies India, it is almost like 15%. तो ये इसीलिए कम है कि कम लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि दे लाइक दिस जॉब, देयर इज अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस इन आरबीआई. तो लोग छोड़ते हैं बट बहुत कम है. ठीक है, और अगर छोड़कर जाते हैं for better opportunities, then there are good opportunities for people who have worked in Department of Supervision, because Indian banks need compliance officers, and these people who would have worked as Department of Supervision officers, they would be fit for this. Payment aggregators like Razorpay and all want good people. So if you have worked in payment and settlement system of department of RBI, you are good fit for payment aggregator companies. फिर कुछ लोग IDM, इंटरनल डीलिंग मैनेजमेंट में करते हैं, वेयर दे आर सपोज टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज. दैट्स अ वेरी हाई प्रेशर जॉब. सो इन्वेस्टमेंट बैंक्स ऐसे लोगों को हायर कर लेते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द सेक्टर्स वेयर यू माइट गेट गुड अपॉर्चुनिटीज इन द प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, बाकी किसी भी डिपार्टमेंट में हो, इफ यू आर वर्किंग वेल, गुड लर्निंग है, तो आपको बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं. बट नॉर्मली एज आई टोल्ड यू, पीपल डोंट लीव बिकॉज अच्छा खासा यहाँ पे चीज़ें सेट हो जाती हैं. अब अगर आपने काफ़ी साल काम कर लिया, रिटायरमेंट पे पहुँच गए, ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले तो रिटायरमेंट में आपको अच्छी खासी पेंशन मिलती है. मोस्ट ऑफ द पीपल, इफ़ यू वुड हैव बीन ड्रॉइंग से 100 रुपीज़ एज योर लास्ट सैलरी, उनको 50 रुपये पेंशन आ जाता है. मतलब 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन सैलरी उनको पेंशन आ जाता है. एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर इट, यू हैव डन ऑलरेडी, एंड नाउ यू आर रीपिंग द बेनिफिट ऑफ दैट बाय sitting at home or maybe doing something else, but you have retired from RBI. एनपीएस में अच्छा खासा पैसा होता है. आई एम नॉट श्योर कि जो आजकल रिटायर हो रहे हैं उनको कितना मिल रहा है, बट आई जस्ट मेड एन एस्टिमेट. अगर हम एनपीएस में 10,000 रुपया महीना भी सेव करें, एवरेज रिटर्न एनपीएस का 12% है, टाइम पीरियड इज से 30 years, देन आई वुड हैव अ कॉर्पस ऑफ अराउंड 3.5 CR. ये बहुत ज़्यादा लग रहा है हमें आज की डेट में 3.5 CR, बट ये आज से 30 साल बाद में है. जो आज से 30 साल बाद में है, उसकी आज की डेट में वैल्यू आई वुड से 1/4 है या 1/16 है. सॉरी, बिकॉज 30 साल में चीजें 16 गुना हो जाती हैं. तो 1/16 ऑफ दिस वुड बी जस्ट 25 lakhs. तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है. आज की डेट में आप मान के चलो 25 से 30 लाख है, बट देन दिस इज ऑल्सो अ गुड अमाउंट, राइट? बिकॉज यू आर ऑलरेडी गेटिंग अ पेंशन एंड यू हैव से 25 to 30 lakh इन एनपीएस. इन टूडेज टाइम, फ्यूचर में वो 3-4 करोड़ होगा, बट वो आज की वैल्यू के मुताबिक कुछ ज़्यादा नहीं होगा. बाकी क्या रिटायरमेंट के बाद आपको एक्सटेंशन मिल सकता है? नॉट पॉसिबल, द रिटायरमेंट डेट इज फिक्स्ड. बट हाँ, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. यू कैन वर्क विद आरबीआई एज एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट, और यू कैन वर्क विद एनी प्राइवेट सेक्टर एंटिटी, बैंक और एनी अदर कंपनी एज एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जॉब्स रहते हैं. इनफैक्ट सम ऑफ द आरबीआई पीपल हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम आरबीआई वर्किंग विद अस आल्सो एज पैनलिस्ट इन द मॉक इंटरव्यू, एंड दे आर आल्सो गिविंग
coaching for various courses like risk management, financial inclusion in some on some other platforms. So there are good opportunities if you have knowledge. In a country like India where online education is expanding, you would always have opportunities to explore and earn some extra money and keep yourself busy. I think at this age, it's not about money, it's more about keeping yourself busy and utilizing what you have already learned in your 30 to 40 years of job. सो ये पूरा एक मैंने आपको लाइफ साइकिल बताया है. आई होप यू वुड हैव लर्नड अ लॉट. काफ़ी चीज़ें इसमें पता नहीं थी लोगों को, रिटायरमेंट, एट्रिशन, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, पोस्टिंग. सो आई होप कि वो क्लियर होगा एंड दैट विल गिव यू काइंड ऑफ पीस इन योर माइंड. जो आपके क्वेश्चंस थे जिनसे आप घबरा रहे थे, जिनको लेकर आप चिंतित थे. सो टेक योर लीव नाउ. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.